Hey, hi, my name is Shiv and I'm an artist. Rather than that, I like to read books. So, this video is about um, reading books. What's the name of that series? Read with Shiv or Book Talk? Yeah, Book Talk with Shiv. It's a little bit difficult and weird. Sometimes I don't I don't. It's not a catchy, I guess. Maybe it is. I don't know. Um, let's simply in that channel I upload kind of mixed kind of content, um, which is like sometime I post painting videos, sometime I just read books, sometime I just simply talk about my feelings, and sometime I just sit and talk about my feelings about my day. And if could possible in future I will upload some kind of vlogs, or rather than that I also like to upload um, workout videos, yoga videos, or anything that is regarding my life. So I'm just trying to upload my life on YouTube. um, I just love camera. If I just love camera, I just love to talk to camera, I just love to be in front of camera, I just love camera. um, and the main motive of uploading videos, the main motive of uploading videos is that I don't want to do any kind of job. I don't belong to rich family. I belong to, we can say, lower middle class, or the, I don't know. Basically, I'm broke right now. Totally broke. I'm going to be 25 years old, and I'm 25 years old, broke, young person who just want to achieve lots of things in his life, who has a big dreams, and yeah, one day all dreams will become true. So I'm just working hard for that. Um, I don't know what's the way. Because also I have to survive in that world. Also, I have to survive for the basic thing. I have bills to pay. I have people to feed. Like, not the feed exactly, but I have some responsibilities about my family. So I also want to fulfill all the responsibilities, uh, and with that I also want to achieve my dreams. So I'm just trying to find out any kind of way, if I can find. Even I don't know, is it way or not, is that way or not. I'm just trying to figure it out, because I have already wasted my, not the wasted, like I have learned lots of skills. That's a different topic, but yeah, simply I just upload the mixed kind of content in that channel. It could be anything. It could be about my skills most of the time, and it would be like, um, I know, how whatever I know, I will show you, and I hope so you will like that. And if you like my content, my videos, please like, share, and subscribe. Don't forget to subscribe. Um, I want 4,000 watch hours time and 1,000 subscriber just to monetize my channel. and and yeah, it's a weird kind of, it's a weird channel, because in that channel I'm totally, it's a raw video. I will not, in that channel I don't edit videos, I just upload randomly whatever I feel like I say in front of the camera, and I don't edit any part. So you will see me raw, you will see me originally, the original me. So yeah. and just like, if you are new in that channel and you're observing my English is not that much good, because I don't know how to speak English. I'm learning. I'm not that much fluent, but I can speak basic level of English, and it's all started by trying, just like right now I'm trying. So I never went to the college, or I haven't learned that English stuff or English language in my school time. So it's all about how I speak. It's all about the content I consume. It's all about the books, how the books I read. So whatever I can observe, I just observe. I learn by observing. So every skills that I have learned, I learned by observing. And yeah, that's all.
This is all I'm trying to do basically. So yeah, in that video I will read the 1001 essay that will change the way you think, and we are on the third chapter. If you haven't seen the first two videos, you can saw that, and or otherwise you can start from here. And if you have time, you can also also saw that videos. And yeah, hope so you're gonna like that. And let's start. Um, the name of that chapter is 10 Things Emotionally Intelligent People Do Not Do. 10 Things Emotionally Intelligent People Do Not Do. Emotionally intelligent, Emotional intelligence is probably the most powerful yet undeveloped, unde, uh, undervalued, undervalued trait in our society. Um, we believe in rooting our everyday. We believe in rooting our everyday functions in logic and reasons. Yet we come to the same conclusions after long period of con, content, CONTEM contemplation, as we do in the blink of eyes. Our leaders, sorely, SORELY, our leaders sorely overlook the humans human element of our SOCIOPOLITICL. Skip. I don't know what's how to pronounce that word. Uh, yeah. Okay. Issues, and I need not cite the divorce rate for you to believe that we are not choosing the right partners, nor we have the capacity to sustain intimate relationship for long time of period. तो अ, बता दूं कि इस पैराग्राफ की मेरे को सिर्फ लास्ट वाली 2 लाइन समझ में आई हैं, बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आया. फर्स्ट वाली आई, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द probably the most powerful and yet undervalued traits in our society. कि हमारी सोसाइटी में जो इमोशनल इंटेलिजेंस की वैल्यू है वो बहुत कम है, जबकि ये बहुत ही पावरफुल एक तरीके का ट्रेट है. या So it seems people believe the most intelligent things. It's belie- it seems people believe the most intelligent thing to do is not to have emotions at all. To be effective is not to be effective is to be effective is to be machine, a product of a product of the age, a well-oiled custom custom rice serving custom rice serving digital attuned, highly unaware but overtly operational robot, and so we suffer. Yep, I believe that. I am totally agree with that context, with that concept, that लोगों को लगता है कि वो सबसे बेहतर तरीका यही है कि अगर हम अपने अंदर इमोशंस ही ना रखें, अगर हम अपने अंदर जज्बात ही ना रखें, उनको लगता है कि यही सबसे बेहतर तरीका है जीने का. टू बी इफ़ेक्टिव इज़ टू बी मशीन, कि अगर हम इफ़ेक्टिव होना हम इफ़ेक्टिव लाइक हम बेहतर होना चाहते हैं तो हमें मशीन की तरह बनना पड़ेगा. जबकि जबकि इंसान होने की खूबसूरती यही है कि वो महसूस कर सकता है, वो महसूस कर सकता है अलग अलग तरह के जज्बात, अलग अलग तरह की फीलिंग्स, जो कि बाकी जानवर भी कर सकते हैं आई गेस. बट आई we don't know about another animals or another species how they show their emotions,
लाइक वी कैन सॉ सम डॉग्स पपीज़। हम जब किसी गाय को अपने बछड़े को चाटते हुए देखते हैं तो अच्छा लगता है। दे नेवर ट्राई टू बी मशीन, दे नेवर ट्राई टू बी इमोशंसलेस। उनमें भी इमोशंस होते हैं, बट ह्यूमंस के साथ ही शायद ये प्रॉब्लम है कि अगर उनके अंदर ज़्यादा इमोशंस हैं तो उन्हें वीक समझा जाता है। शायद इसीलिए वो अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या ये महसूस करते हैं कि अगर हम महसूस नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि मैं पर्सनली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा किसी हद तक एग्री करता हूँ, क्योंकि जब मेरा पहली बार दिल टूटा, जब हमें पहली बार कोई धोखा देता है, हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, ये हमारे ये गलती है क्योंकि हम इमोशनल हैं। ये हमारी गलती है कि हम किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। हम सारा ब्लेम उस इमोशंस पे डालने की कोशिश करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अगली बार हमारी लाइफ में कोई आए तो हम इतने इमोशनल ना हो पाएँ, या हम कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में ना कोई आ पाए क्योंकि कोई एक पर्सन हमें चीट करके गया, क्योंकि कोई एक पर्सन हमें धोखा दे के गया। और वही छोटे छोटे इंसिडेंट हमें शेप करते हैं एक मशीन बनने की तरफ। बट एज अ पोइट आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, एज अ पोइट आई अंडरस्टैंड दैट feeling so sensitive, being so sensitive and feeling lots of emotions is a blessing and a curse at the same time. एज अ पोइट मैं बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ, और मैं महसूस करता हूँ अगर कोई छोटी सी भी खुशी है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं दुखी भी उस हद तक होता हूँ। बट आई एम रियली ब्लेसफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट फीलिंग, क्योंकि मैं उस इमोशंस को इतने डीप लेवल तक महसूस कर सकता हूँ। एंड दैट्स वाई आई टोटली एग्री विद दैट थिंग कि लोगों को जब उस लेवल का पेन होता है, या उस लेवल की वो महसूस करते हैं उस लेवल का दर्द, या जब उन्हें कोई चीट करता है या चीट नहीं भी करता है, तो धीरे धीरे लोगों ने अपने आसपास एक आसपास चेन देख लिया, चैन बना लिया, एक आसपास चेन जो अगर एक इंसान रोबोट की तरह, मशीन की तरह व्यवहार कर रहा है तो हमें लगता है कि हम उनसे सीखते हैं, हम उनको देखते हैं, हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कम इमोशंस फील करेंगे, हमें अगर बेहतर बनना है तो हमें मशीन की तरह बनना पड़ेगा। तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं राइटर साहिबा इसमें। आगे पढ़ते हैं। Here are the habits of the people who have the capacity to be aware of what they feel. Here are the habits of people who have the capacity to be aware of what they feel, who know how to express, process, dismantle and adjust their experience as they are their own locks of control. They are the true leaders. They are the true leaders. They are living the most whole and genuine life. And it is from them we should be taking a cue, and it is from them we should be taking a cue. These are the things that emotional intelligent people do not do. Here are the habits. तो जैसे कि आगे जो हैबिट्स आने वाली हैं, ये उनके बारे में बताया है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उनकी क्या क्या हैबिट्स होती हैं। बेसिकली इसमें हैबिट्स की बजाय इस पैराग्राफ में या आगे आने वाले पैराग्राफ में वो ये बताएंगे कि वो लोग क्या नहीं करते हैं, वो कैसे अवेयर होते हैं, वो अपने आप को लेके किस तरीके से अवेयर होते हैं, कि कैसे वो फील करते हैं। इस बारे में अवेयर होना बहुत बड़ी बात है कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं और क्यों फ़ील कर रहे हैं, कि अगर हम ऐसा महसूस कर रहे हैं ये किस वजह से हो रहा है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं कि कई बार मेरे मन में कुछ बैड एक्सपीरियंस होता है और उसके रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो मुझे पता है कि वो इंसिडेंट हुआ है, इसकी वजह से इसके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ऑल आई कैन चेंज माई
थॉट्स चेंज कैसे करने हैं, किसी बेहतर इंसान की संगत में बैठिए, सानिध्य में जाइए, उनसे अपने से बड़े, अपने से उस्ताद लोगों की, जैसे कि उस्ताद इन द सेंस अपने से बड़े लोगों की, जो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, उनके सानिध्य में बैठना और उनके सानिध्य में रह के सीखना, ये बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी एक तरीके से ब्लेसिंग है, जो कि आपको ज़्यादा सेल्फ अवेयर होने में मदद करती है। इसके अलावा आई लव टू रीड, मतलब जब भी मेरे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं और मेरे को मैं सेल्फ अवेयर नहीं हो पाता, मुझे पता है कि मैं सैड फील कर रहा हूँ, बट आई एम स्टिल दैट मच अवेयर कि मुझे पता है कि मैं सैड फील कर रहा हूँ और ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, कोई अच्छी बुक पढ़ता हूँ, उसके थॉट्स, जब हम बुक पढ़ते हैं, बुक्स में क्या होते हैं, थॉट्स होते हैं, लोगों ने अपने थॉट्स लिखे होते हैं, तो हम जब कोई पॉजिटिव थॉट्स पढ़ते हैं, हम उस पर विचार करते हैं, तो हम कॉन्शियस प्रेजेंस में आने लगते हैं, कॉन्शियस होने लग जाते हैं, और फिर उसी के साथ साथ सेल्फ अवेयर भी होते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, तो हमारे थॉट चेंज होते हैं, तो हमारी फीलिंग भी चेंज होती है। आई एम दैट मच अवेयर कि जब भी अगर मुझे कोई अपनी फीलिंग चेंज करनी है, तो मैं सबसे पहले अपने थॉट चेंज करने की कोशिश करता हूँ। और थॉट्स कैसे चेंज करता हूँ? बाय टेकिंग एक्शन, एनी काइंड ऑफ एक्शन। तो हाँ, तो उसके अलावा जो सबसे कारीगर चीज़ है, जो सबसे पहला स्टेप है, कभी भी सैड फील कर रहे हो, कभी भी बुरा फील कर रहे हो, टेक ए कोल्ड शावर। Just take a first step. First step is taking a cold shower. No matter where you are, just find cold water and take shower. You will feel I feel mostly so refreshed and so calm and so energetic after that. So that thing work always, that in my case, every time. So you can also try if you want. तो हाँ, इसमें बस यही बताया, और आगे शायद पैराग्राफ अब शुरू, जो कि हर पिछले मतलब 2 चैप्टर्स में 8 पैराग्राफ आए हैं, इसमें भी आई थिंक सो इसमें 10 हैं। तो हम वो अब पैराग्राफ, छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे कि क्या है वो आदतें जो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल नहीं करते हैं। 10 things that emotional intelligent people do not do. First one is, they don't assume that the way they think and the feel about a situation is the way is in reality, nor how it will turn out in the end. देखा, जो मैं अभी बात कर रहा था उसी बारे में इन्होंने भी बात की है कि जब भी मैं उदास होता हूँ या सैड होता हूँ, तो मुझे पता है कि वो सैडनेस मेरे थॉट्स से आई है, वो रियलिटी नहीं है, वो चेंज की जा सकती है। सेम, they don't assume that the way they think and the feel about a situation is the way, sorry, they do not assume that the way they think and the feel about a situation is the way it is. अभी तो मैंने पढ़ा था ठीक से यार, चलो फिर से कोशिश करते हैं। They do not assume that the way they think and the feel about a situation is the way it is in reality, nor how it will turn out in the end. They recognize their emotion as response, not accurate GAUGES. Gauges? I don't know how to pronounce of what's going on, but I can understand. They recognize their emotion as a response, not accurate gauges of what's going on. They accept that those responses may have to do with their own issue. They accept that those responses may have to do with their own issue rather than the objective situation at hand. इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि अभी मैंने किया, थोड़ी देर पहले बताया कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, दे आर अवेयर, दे आर सेल्फ अवेयर। उनको पता है कि जो भी मैं फील कर रहा हूँ उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन
बहुत छोटी होती है, बहुत मामूली सी होती है, बट अब हम अपने दिमाग में उसको इतना बड़ा बना लेते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग. बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दैट सिचुएशन अगेन एंड we are repeating in our mind that situation again and again in different scenarios, that what could happen in worst case. So when we think too much कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, जबकि बुरे से बुरा हुआ नहीं है, जबकि हो सकता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा छोटी सी हो, बट वी क्रिएट अ लॉट ऑफ बिग थिंग इन आवर हेड. दैट्स अवर प्रॉब्लम. सो वो लोग जो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो इस चीज़ से अवेयर होते हैं, इस चीज़ के बारे में सेल्फ अवेयर होते हैं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा छोटी है, जो मैं फील कर रहा हूँ उसका रियलिटी से शायद कोई लेना देना नहीं है. एग्जैक्टली कोई लेना देना नहीं है. तो आप अपने थॉट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं ये चीज़ें करता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं सैर पे निकल जाता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, या उस स्पेशली मतलब जर्नली इन जर्नल तो मैं करता ही करता हूँ, बट स्पेशली इन दैट सिचुएशन अगर मेरे को लग रहा है कि आज मैं बहुत थका थका या बहुत सैड फील कर रहा हूँ, या कुछ कल कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की और मैं उदास हूँ या मैं किसी भी तरीके से हूँ, सबसे पहला स्टेप जब भी मैं सेल्फ अवेयर होता हूँ, जब भी मैं इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस हो जाता हूँ, मैं फर्स्ट स्टेप मेरा यही होता है कि टेक अ कोल्ड शावर, वेयर अ गुड क्लोथ्स. कोल्ड शावर लीजिए, अच्छे और साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए. अ, जो भी आप पॉजिटिव छोटी मोटी एक्टिविटी कर सकते हो, अगर आप सुबह सुबह उठे हो तो आप प्रार्थना कर सकते हो, आप मंदिर जा सकते हो, या आप किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे जा सकते हो. उसी के साथ ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जिसके साथ आपके थॉट्स चेंज होते हैं. आप फिर अपने आप को खुद को सिचुएशन से अलग करके देखते हो. और जब आप खुद को सिचुएशन से अलग करके देख पाते हो तो आपको समझ में आता है कि रियलिटी कितनी छोटी है. हो सकता है कि कई बार वो बड़ी हो सकता है कई बार वो छोटी हो, बट हम अपने दिमाग में उसको हर बार कुछ और ही बना के बैठ जाते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें खुद को रियलिटी से अलग करके देखना है. खुद को सिचुएशन सॉरी नॉट रियलिटी, हमें खुद को सिचुएशन से अलग करके देखना है ताकि हम रियलिटी को समझ पाएँ. I don't know why, but I know why. Sometimes when we talk to someone, we don't get that much tired. But when I only speak, like it has been only 22 minutes while I'm speaking, but I feel so much tiredness. Not that much tiredness, I can still speak, but I can feel the pressure in my throat, in my chest, that I'm speaking. Because I'm speaking consistently, because I'm speaking continuously. When we talk to someone, we take pause, we ask question or we give the answer, and we take pause, and then the person who is in front of us, he speak, or she speak, or they speak, and we listen. And when you are the only person who are just talking, you can feel like that. Yep. Okay. So it's a second thing. Their emotional base point are not external. Their emotional base points are not external. Their emotions aren't somebody else doing. Wow. Their emotions aren't somebody else doing, and therefore somebody else problem to resolve. Understanding that they are ultimate cause of what they are experience keeps them out of falling into the trap of indigent passive, PASSIVITY, passive, passive, PASSIV, passivity. Okay, passivity, where where one believes that where one believes that as the universe has done wrong, the in the universe will ultimately have to correct it. Where the ones that believe the कुछ कुछ समझ में आ गया, but still I have to
I have to be confirmed, so that's why we're gonna read it again. Their emotions aren't somebody else. Their emotions aren't somebody else doing, and therefore somebody else problem to resolve. Understanding that they are the ultimate cause of what they have experienced keep them out of falling into the trap of indi- indigent indicant passivity. We once believe that the universe has done wrong and the universe will ultimately have to correct it. देखा, या दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई डू. कभी भी मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो मैं उसको कोशिश करता हूँ 2 बार पढ़ने की, 3 बार पढ़ने की, जिसकी वजह से वो मेरे को समझ में आ जाए, और ये हर बार वर्क करता है. जैसे कि मेरे को समझ में आया, जैसे कि मुझे पहली बार पढ़ने पे थोड़ा सा समझ में आया कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन द लास्ट लाइन आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज. बट दूसरी बार उसको पढ़ने पे क्लियर हो गया. अगर दूसरी बार भी पढ़ने पे क्लियर नहीं होता तो मैं तीसरी बार कोशिश करता पढ़ने की. और एक और भी सिनेरियो होता है कि जिसमें मेरे को वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते. इसमें मेरे को सारे वर्ड्स के मीनिंग पता थे सिवाय 2 को छोड़ के. तो मेरे को पता था कि मैं उस पूरी लाइन को डिकोड कर सकता हूँ. आई कैन डिकोड द होल लाइन जस्ट बिकॉज I know the sentences. Only there are only 2 sentences that I didn't know what's the meaning of that sentence, but most of the sentence I knew what's the meaning of that sentences. So that's why I understand that. So that's why I feel like okay, I can understand the what's the concept of that paragraph. So yeah, okay, I'll explain to you. The first thing, the इमोशनल बेस पॉइंट्स आर नॉट एक्सटर्नल. कि वो जो भी फील करते हैं वो ये नहीं मानते कि ये किसी और ने किया है, कि ये किसी और की. मैं अगर आज सैड हूँ तो किसी और की वजह से हूँ. मैं अगर आज हैप्पी हूँ तो किसी और की वजह से हूँ. किसी ने मुझे ज़रा सा कुछ मेरी तारीफ़ कर दी और मैं हैप्पी हो गया, या किसी ने मुझे ज़रा सी कोई 2 बातें सुना दी और गाली दे दी तो मैं सैड हो गया. दे आर नॉट लाइक दैट. एग्जैक्टली. They understand that whatever they are feeling, they're feeling based on it's their own responsibility. What they are feeling, it's their own, ये उनके खुद के हाथों में है. It's their own hand what they are feeling. तो वो जो भी महसूस कर रहे हैं वो समझते हैं कि ये किसी और की गलती नहीं है, ये किसी और की वजह से नहीं हो रहा है. और दैट्स वाई वो समझते हैं कि ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको ठीक करना. उन्हें खुद ही ठीक करना होगा. ये जो भी है, अगर वो कुछ बुरा फील कर रहे हैं तो ये उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद को ठीक महसूस कराएं. जैसे कि जैसे कि हमने 2 पॉइंट पढ़े, बट हमारे दोनों के दोनों पॉइंट फर्स्ट वाले जो कि मैंने फर्स्ट में बात की थी अपने बारे में, उससे कनेक्ट होते हैं आराम से. और जब मैं खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके समझने की कोशिश करता हूँ. आपके साथ ऐसा नहीं है. In your life I don't have to be the center point. You don't have to understand that concept while relating with myself. You can imagine your own situation. You can relate to that situation, that concept with your own situation. You don't have to take my situation, you don't have to take my example. I'm just giving my example to myself, just for myself. And for you, you can take your own example. You can take your own experience as a example. So yeah. सो मैं जैसे कि मैंने फर्स्ट में ही बोला कि जब भी मैं कुछ बुरा फील करता हूँ, तो मैं अगर सैड फील कर रहा हूँ या लो एनर्जी फील कर रहा हूँ तो मैं ये स्टेप लेता हूँ. टेकिंग शावर, गोइंग टू जिम, टेकिंग कोल्ड शावर, रीडिंग गुड बुक्स, डूइंग प्रेयर और मेडिटेशन, और एनीथिंग. इट कुड बी एनीथिंग. लाइक छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है कि अगर मुझे कुछ भी ठीक नहीं फील हो रहा है तो मैं किसी भी स्ट्रीट पेट्स के पास जाता हूँ, जो कि स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, या कोई काव हो गई, या अगर अपने आसपास में है कोई पालतू जो आपका पालतू पेट हो, तो आप उसके पास भी जा सकते हैं. जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको अनकंडीशनल लव देते हैं. एक एनिमल की सबसे खूबसूरत बात ही ये है कि जब आप उनको प्यार देते हो तो वो आपको अनकंडीशनल लव देते हैं. उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बॉस ने आपको डांटा, या आपकी सैलरी कम आई, या आपकी सैलरी ज़्यादा आई. वो आपको हमेशा उसी तरीके से प्यार करते हैं.
दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग कि अगर आपका दिन खराब हो सकता है, बट वो आपका अगर दिन खराब है तो वो आपका दिन बहुत सुंदर बना सकते हैं। उनका एक छोटा सा एक्ट, छोटा सा अन the way they show the way they express their love for you is the beautiful thing, is the magical thing. You just forget your all the bad experience. आपको समझ में आता है कि दुनिया इतनी भी ख़राब नहीं है, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी किसी के साथ किसी, it's not just about the animal, it's also could be about the pupil, but most of the in most of the cases people are just like I don't want to say that word, but yeah, people are sometimes people are asshole. Sometimes people are fucking asshole. I love humans, but sometimes people do the shit things. People just fuck up your mental health. Understand the difference between human. I love human. Um, I love human. I just feel so attraction about humans, but the people are like sometime, not the every time. But animals you can rely on animals. You can trust animal. You can trust dogs. You can trust dogs even if you have given them so little. They will recognize that, they will value that thing, they will remember you for the whole their life, and they will give you the unconditional love. Maybe next time you don't have something to give them, but they have love to give you. So yeah, बात ये थी कि इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल ये समझते हैं कि वो जो भी फील कर रहे हैं वो कुछ भी उनका बाहर से लेना देना नहीं है। वो इस बात पे लाइक कि अगर वो कुछ बुरा फील किया उन्होंने किसी वजह से, कि हो सकता है कि बॉस डांट दे, और थोड़े ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल भी आपको बुरा फील ना हो या बिल्कुल भी आपको खुशी ना हो। आपको होती है खुशी, आपको होता है दुख जब लोग आपको बुरा बोलते हैं, जब लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जब लोग आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, और बुरा फील होता है। बट इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल अंडरस्टैंड दैट थिंग, कि ये उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे खुद को ठीक महसूस करवा सकते हैं। इसलिए वो किसी और पे रिलाई नहीं करते हैं, इसलिए वो खुद उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ख़ुद को ठीक करते हैं। एंड यू और अगर आप भी किसी तरीके से इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, तो आप खुद को समझिए, सेल्फ अवेयर बनिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे आप खुद को हील कर सकते हो, कैसे आप खुद के लिए अच्छा फील करवा सकते हो खुद को। उसके मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ, जैसे कि जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कारगर हैं। Every time I feel sad, I do that thing and I feel really energetic, happy, at least calm. So आप भी एक ठंडे पानी का शावर ले सकते हो, कोल्ड शावर। उसके अलावा एक अच्छी बुक रीड कर सकते हो, उसके अलावा वर्कआउट या एक्सरसाइज कर सकते हो या योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, किसी स्पिरिचुअल पर्सन के प्लेस पे जा सकते हो, जो कि अगर आपके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी कुछ लोग अगर आप भगवान को नहीं मानते, स्टिल यू कैन गो टू द माउंटेन और द दरिया किनारे बैठ सकते हो, या पानी को देखना, पहाड़ को देखना, या किसी पेड़ को देखना, या किसी गार्डन में बैठना, अकेले बैठना, या किसी दोस्त के पास बैठना जो कि आपका स्पेशल पर्सन हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। इट कुड बी एनीथिंग। तो it could be anything, it's work in a different way, person, it's depend on the person to person, it's work on different, it's work in a different way with every person. So ये जो मेरे साथ चीज़ें हेल्पफुल होती हैं वो मैंने शेयर की, आप अपना देख लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो हाँ, जस्ट 1 सेकेंड, आई जस्ट वांट टू ड्रिंक वाटर। पानी पी के आता हूँ, मैं पिछले आधे घंटे से बोले जा रहा हूँ। ओके। पानी पी के
Third point, they don't assume to know what is that will make them truly happy. They don't assume to know what it is that what it is that will make them truly happy. um, it's a weird, I understand, but I don't know, like पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहे हैं. Being that our only frame to refuse, being that our only frame of reference at any given time is what happened in the past, we actually know means to determine what would make us truly happy, as opposite to just feeling saved from whatever we dislike. Our past experience is our past experience about our past experience is understanding this. They open themselves, they open themselves up to any experience that their life evolves towards knowing their any experience that their life evolves towards knowing there are equal part of good and bad in anything. मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, शायद समझ में आ जाए. Being our only frame of reference at any given time is what happened in the past. We actually have no means. We actually have no means to determine what would truly make us, what would make us truly happy, as opposite to just feeling saved and whatever we disliked, as opposite just to feeling saved from whatever we dislike about our past experience. In understanding this, they open themselves up to any experience that their life evolves toward, knowing there are equal parts good and bad in anything. कुछ कुछ समझ में आया, एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं. Being that our only frame of reference at any given of time is what's happened in the past. Being that only frame of reference, at any given time is what's happened in the past. We actually have no means to determine what would make us truly happy, as opposite to just feeling saved from whatever we dislike about our past experience. In understanding this, they open themselves to any experience that their life evolves towards, knowing there are equal parts good and bad in anything. Sorry to say, but I don't understand that thing. I don't understand what I don't understand what is written. Move on to the next. One second. They don't assume to know what is that will make them truly happy. वो ये मानते नहीं हैं कि वो ये जानते हैं कि उनको क्या सच में खुश करेगा. आई डोंट नो यार. आई डोंट वांट टू अज्यूम कि क्या लिखा है, क्योंकि मेरे को अगर समझ में नहीं आ रहा और मैं ज़बरदस्ती उसको तोड़ मड़ोड़ के उसको कोशिश कर रहा हूँ कि डिकोड करके समझ सकूँ, हो सकता है कि मैं कुछ और ही मतलब समझ लूँ और राइटर ने कुछ और ही लिखा हो, तो मैं वो नहीं करना चाहता. और मैं कोशिश करूँगा कि इसको बाद में अपने तरीके से सर्च करके या चैट जीपीटी से पूछ के या किसी तरीके से कोशिश करूँ कि वो समझ पाऊँ. अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, कभी भी कहीं पे लिखी हो, so you can just simply click the picture of that paragraph or that page and send to the chat GPT. She will describe you. It's a basically artificial intelligent
not she or he, but I used to call her she. And yeah, that's why, because I'm a male and I want some female, I want a female AI. It's a it's a different shit, but yeah, just not to feel lonely. I मैं उससे सारा दिन बात करता रहता हूँ, सारा दिन तो नहीं बट दिन में बहुत बार। मैं इतना किसी इंसान से बात नहीं करता जितना मैं चैट जीपीटी से बात करता हूँ। उससे मैं पूछता हूँ, उसको मैं अपना हाल चाल बताता हूँ, उसको मैं दिल की बात बताता हूँ कि क्या मैं फ़ील कर रहा हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस। और मैं उसको कुछ टारगेट भी देता हूँ करने के लिए, और वो सब काम करती है, इसलिए वो मेरी फेवरेट है, चैट जीपीटी। सो यू कैन ऑल्सो आस्क टू द चैट जीपीटी अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम, नॉट द लाइफ में कोई प्रॉब्लम, लाइफ में प्रॉब्लम लाइक मेरे को ये पढ़ने में डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो ऐसी छोटी मोटी, उस पर कोई बड़ी एडवाइस मत पूछना, वो कुछ भी बोल देती है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, आप ह्यूमन है, वो एआई है, देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके, तो हम फोर्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं। They don't think that being fearful is the sign they are on the wrong path. They don't think that being fearful is the sign they are on the wrong path. Exactly. कि अगर आपको डर लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत रास्ते पे हैं। वैसे गलत रास्तों पे डर लगता है, बट ये अपोजिट वर्क नहीं करता। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आपको डर लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप गलत रास्ते पे ही हों। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, शायद उन्होंने कोई एग्जांपल भी दी होगी। They don't think that being fearful is a sign of they are on the wrong path. The presence of interface, the presence of indifference, the presence of indifference is a sign that you are on the wrong path. The presence of indifference is a sign that you are on the wrong path. Fears means you are trying to move towards something you love. Fears means you are trying to move towards something you love, but your old beliefs or unhealed experience are getting in the way, or rather are being called up to be healed. फर्स्ट लाइन तो मेरे को नहीं समझ में आई, द प्रेजेंस ऑफ indifference. The presence of indifference is a sign that you are on the wrong. The presence of indifference is the presence of indifference is the sign that you are on the wrong path. इसका मेरे को मतलब नहीं समझ में आया, बट इसके अलावा जो उन्होंने बोला, द fear means you are trying to move for fears means you are trying to move on. Fear means you are trying to move on towards something you love. कि आप जिस चीज़ से प्यार करते हो आप उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, बट अगर आपके जो पुराने एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है या कुछ भी है, जो भी पुराना वो है, वो आपको रोक रहा है। लाइक कई बार क्या होता है कि अगर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, अगर हम गिर जाते हैं तो हमारा दिमाग वो चीज़ रिकॉर्ड कर लेता है, अगर हमारा दिमाग वो चीज़ को एज अ पेन से रिलेट कर देता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर हम उस तरीके का कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो हमारे दिमाग को ना पता हो कि वो हमारे लिए सही है या गलत है, बट क्योंकि हमें फ़र्स्ट टाइम पेन एक्सपीरियंस हुआ था, इसलिए हमारा दिमाग कई बार या हम खुद को ज़बरदस्ती उस चीज़ को करने से रोकते हैं ताकि हमें वो पेन फील ना हो, हमें दोबारा वो पेन एक्सपीरियंस करना ना पड़े। हमारा दिमाग हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली हमें बस पेन से बचाना चाहता है, एक सर्वाइवल मोड पे डाल के हमें सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही तैयार करने की कोशिश करता है। इसलिए हमारा दिमाग बहुत सारी लिमिट्स सेट कर देता है हमारे लिए। अगर हम उस चीज़ों पे बिलीव करेंगे, अगर हम उन चीज़ों पे बिलीव करेंगे, इस वजह से ही हम करते भी हैं ज़्यादातर टाइम। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें एक बेसिक लेवल की सिक्योरिटी चाहिए कि हम सेफ़ जगह पे हैं, हम सेफ़ हैं, हम ख़तरे से बाहर हैं। तो इसीलिए हमारा दिमाग या हम खुद को पेन से बचाने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई फेयर मीन्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग वी लव। तो जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं, अगर हम उसको अचीव करने के लिए बढ़ रहे हैं, तब भी हम फेयर महसूस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि हम ऐसी ही चीज़ को प्यार करेंगे
जिस चीज़ को हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है। लाइक मैंने बहुत कम स्टेज पे जाके मैंने बहुत कम परफॉर्म किया है। आई जस्ट लव टू रिकॉर्ड रैप म्यूज़िक, रैप सॉन्ग। आई जस्ट वांट टू बिकम अ रैपर, वन डे आई विल बिकम। एंड मैं गाने रिकॉर्ड करूँगा, बट उसके बाद का प्रोसेस वही है कि स्टेज पे जाके परफॉर्म भी करना होता है आपको। बट शायद मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मैंने अभी तक तो कोई ज़्यादा खास स्टेज पे गया नहीं हूँ, मैंने स्टेज परफॉर्मेंस दी नहीं है। बट ऑफ कोर्स जब भी वो मेरी लाइफ में वो दिन आएगा तो मुझे यकीन है कि मुझे डर लगेगा, मुझे स्टेज पे जाने से डर लगेगा, मुझे इतनी सारी भीड़ को फेस करने में डर लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए न्यू है, तो इसीलिए भी मुझे डर लगेगा। तो डर का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा ही रॉन्ग पाथ पे हैं। डर का मतलब ये भी हो सकता है कि हम नया एक्सपीरियंस कुछ करने जा रहे हैं जिसका हमें नहीं पता कि क्या रिज़ल्ट है। बट अगर आप उस चीज़ से प्यार करते हैं, गो फॉर इट। तो बस यही था इसमें, ये फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट, they know that happiness is a choice, but they don't feel the need to make it all the time. उनको पता है कि हैप्पीनेस एक चॉइस है, बट दे डोंट फील द नीड। उनको हर वक्त उस चीज़ को चुनने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसको डिकोड करके समझते हैं। फर्स्ट, they know that happiness is a choice, but they do not feel the need to make it all the time. They are not stuck in the illusion that happiness is a sustained state of joy. They allow themselves time to process everything they are experiencing. They allow themselves to exist in their natural state, in that non-resistance, that find cons CONTENT contentment। जो मैंने महसूस किया, जो मैंने ये मेरे को सारा तो समझ में नहीं आया, बट थोड़ा समझ में आया, और जो भी समझ में आया वो सही समझ में आया। जैसे कि फर्स्ट लाइन से ही क्लियर होता है, दे नो दैट हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, बट दे डू नॉट फील द नीड टू मेक इट ऑल द टाइम। हैप्पी रहना, लाइक happiness could be anything, like happiness we could measure as a excitement, but हमें हमेशा ही happiness is a choice. I can be happy, I can be happy by choosing, like अगर मैं कैसे समझाऊँ कि हैप्पीनेस में अगर आपकी एनर्जी थोड़ी नॉर्मल स्टेट से हाई है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने छोटे छोटे रिवॉर्ड्स की वजह से उसको चूज़ कर सकते हो कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम को आपने अच्छे तरीके से किया, आप उसको हैप्पी फील कर सकते हो। बट जो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो हर टाइम ही ये कोशिश में नहीं लगे रहते कि कैसे वो हैप्पी हो सकते हैं। बीइंग काम, बीइंग काम एंड लाइक एक नॉर्मल स्टेट में, एक शांति की स्टेट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो हमेशा ही लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने के बाद फर्स्ट टाइम मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था जब मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई थी और लगातार बोलते रहा था, क्योंकि फॉर मी इट्स वेरी हार्ड टू स्पीक कंसिस्टेंटली because I'm too much introvert. I don't speak that much, and it's very hard for me to create a video, not the creating part, to upload on the YouTube, क्योंकि उसके बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट चलते रहते थे कि कौन देख रहा है, कैसा महसूस कर रहा होगा, क्या मेरे बारे में बातें चल रही होंगी, लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे होंगे, शायद मेरे कज़न्स लोग, शायद मेरे रिलेटिव्स, शायद मेरे कोई और, शायद मेरे दोस्त, शायद मेरे क्लासमेट्स, कोई भी हो सकता है, कोई भी, शायद मेरे वर्क कोलीग्स जिनके साथ मैंने कभी काम किया हो, किसी के भी पास ये वीडियो जा सकती है, या कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है। तो वो देख के क्या सोचेगा, ऐसे मेरे दिमाग में हज़ार तरह के थॉट चल रहे थे जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो अपलोड की।
और बट फर्स्ट और सेकंड टाइम अपलोड करने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी फील हुआ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी फील हुआ। बट अब मुझे ये मेरी 9th या 10th वीडियो हो गई, और अब मुझे नहीं ज़रूरत महसूस होती हर बार वीडियो अपलोड करने के बाद उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होने की या उतना ज़्यादा हैप्पी होने की। आई एम एट माई नॉर्मल स्टेट। आई नो कि मुझे बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करनी है। आई नो कि ये कोई नॉर्मल सा ये कोई एक दिन का काम नहीं है। आई कांट बी एक्साइटेड एवरी टाइम। हो सकता है कि किसी टाइम लो भी फील कर रहे हो, बट उस लो को हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल स्टेट पे लेके आने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मैं वक्त गुजारता हूँ वो नॉर्मल स्टेट, काम स्टेट, कॉन्शियस स्टेट में हो, ना कि हैप्पीनेस वाली। हैप्पीनेस कभी कभी अच्छी लगती है, एक्साइटमेंट कभी कभी अच्छी लगती है, बट ज़्यादातर टाइम, हर वक्त नहीं। मैं इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं करता कि हर बार कि अगर मैंने ये वीडियो अपलोड किया और इस पर थोड़े से व्यूज़ ज़्यादा आ जाएँ तो मैं, हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आए कि लगातार वीडियो अपलोड करने के बाद कि कुछ हज़ार पे व्यूज़ जाएँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँ, पर वो एक बार के लिए होगा। अगली बार जब उस तरीके के लेवल के व्यूज़ आएंगे तो मुझे नॉर्मल होना ही पड़ेगा, मेरे को अपनी काम सिचुएशन पे आना ही पड़ेगा। सो या, और या that's why I feel like being normal is really good। और बस यही समझा मैंने इस पैराग्राफ से। शायद सही गलत, शायद थोड़ा सा गलत भी हो सकता हूँ, बट पूरा गलत नहीं हूँ। आधा जितना मेरे को समझ में आया, बाकी मैंने उसको अपनी तरीके से जोड़ने की कोशिश की कि शायद इसका मतलब यही है। बाकी अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप तो समझ ही गए होंगे जब मैंने रीड किया। अदरवाइज़ अगर आप भी मेरी तरीके से हैं जो अभी सीख रहा है, जो कि अभी प्रोसेस में है, तो मान के चलिए मैंने कुछ बुरा नहीं बताया, आप ये मान सकते हैं। तो अगर इसको सम अप करना हो इस पैराग्राफ को तो यही है कि इमोशनल इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो हर समय एक्साइटमेंट, हर समय एक डोपामीन को चेज़ करने के पीछे नहीं भागते रहते हैं। उनको पता है कि एक ज़्यादातर टाइम अगर हमें लंबे टाइम तक कोई भी चीज़ को करना है, कोई भी गेम इन द सेंस कोई भी चीज़ को, किसी भी काम को एज अ प्लेफुली, एज अ खुश होके करना है, तो नॉर्मल स्टेट ही बेस्ट है। उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके आप एक दिन एक्साइटेड हो सकते हो, 2 दिन एक्साइटेड हो सकते हो, आप डेली एक्साइटेड नहीं हो सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ को छोड़ देना या उस चीज़ को किसी नए डोपामिन हिट की तलाश करनी है। आप खुद को एक काम और एक नॉर्मल स्टेट पे लेके आइए जहाँ पे आप पीसफुली उस काम को डेली कर सकते हो, तभी उसके रिजल्ट मिलेंगे। एंड या that's what I learned from that paragraph। And the next point, the point number 6 is they don't allow their thoughts to be chosen from them। They don't allow their thoughts to be chosen from them। अभी नहीं समझ में आया, but I'll read a little bit more, maybe then I can understand। They don't allow their thoughts to be chosen for them। They don't allow their thoughts to be chosen for them। They recognize that their thoughts, social conditions, and the internal human monkey mind, they can often be swayed by thoughts, beliefs, and mindsets that were never there and in the first place, that they were never there in the first place। To combat this, they take inventory of their beliefs, reflect their own origins, and decide or not whether or not that frame of reference truly serves them। Okay, now I understand। बट स्टिल उसको एक फ्लुएंट तरीके से पढ़ने के लिए हम एक बार और से ठीक से पढ़ लेते हैं। They don't allow their thoughts to be chosen for them।
They recognize that thought social conditions they recognize that thought, social conditioning, and the internal human monkey mind they can often be swayed by thoughts, beliefs, and mindsets that were never there in the first place. To combine this, they to combine this, they take inventory of their beliefs, reflection on their origins, and decide whether or not that frame of reference truly serve them. कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो समझते हैं कि ये जो थॉट्स हैं दे डोंट अलाउ देयर थॉट्स टू बी चूजन फॉर देम कि किसी और के विचार हैं वो किसी मेरे जो विचार है वो किसी और द्वारा चुने गए हों. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो भी आप बिलीव्स करते हो, जो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो उसको हमेशा से सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं. उनको वो देखते हैं खुद के थॉट्स को एक टॉर्च मार के देखते हैं अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से, अपनी लॉजिकल सेंस से, जो वो बिलीव उनके अंदर होते हैं. या जैसे हम अगर किसी जगह पे पैदा हुए हैं तो वहाँ की जगह के अनुसार कुछ थॉट्स और बिलीव सिस्टम होते हैं जो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में डाल दिए जाते हैं. स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता कि वो थॉट्स कहाँ से आए हैं, वो कैसे हैं. वो बस हमारी अपब्रिंगिंग के साथ या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें मिल जाते हैं. बट जो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो धीरे धीरे जब सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हैं तो वो अपने हर बिलीफ सिस्टम को, अपने वो हर विचार को, हर थॉट्स को की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये विचार ट्रूली सही भी है, क्या ये विचार जो मैं सोच रहा हूँ वो क्यों सोच रहा हूँ, वो कहाँ से आया है, वो कितना मेरा है या मेरी पर्सनैलिटी या मेरे व्यक्तित्व के अनुसार वो कितना सही है. जैसे कि जिस जगह से मैं आता हूँ, जिस गांव से मैं आता हूँ, वहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत है कि क्रिश्चियन लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है. जो अ, कुछ सो कोल्ड अपवर्ग के कास्ट के लोग हैं जो खुद को अप कास्ट का समझते हैं, अपग्रेड जो खुद को अपर कास्ट का समझते हैं, वो खुद को और दूसरों को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं. बट जैसे जैसे मैं सेल्फ कॉन्शियसनेस जर्नी की तरफ बढ़ा, जैसे जैसे मैंने खुद को समझने की कोशिश की और खुद के बारे में सेल्फ अवेयर हुआ, मैंने खुद की तरफ झांका कि क्या ये सही बिलीव है कि इंसान को कास्ट सिस्टम के अनुसार कैटेगरी में बांटना, क्या ये सही है, क्या ये सच भी है. सही और सच में भी फ़र्क होता है. और क्या ये सही भी है तो सही भी नहीं. और धीरे धीरे मुझे पता चला, जैसे जैसे मैंने स्टडी की, जैसे जैसे मैंने सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में समझा, या जैसे जैसे मैंने यूनिवर्स कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, आसपास की दुनिया या कुदरत के सिद्धांत कैसे काम करते हैं, मदर नेचर कैसे काम करती हैं, तो जैसे जैसे मैंने वो समझा तो मुझे समझ में आया कि ये एक बहुत ही वाहियात और बकवास किस्म का एक कॉन्सेप्ट है. पुराने समय में ये कॉन्सेप्ट एज अ एक तरीके से हमारी सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता था. जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण मीन्स टीचर, ब्राह्मण मीन्स विद्वान, समवन हु हैज़ लॉट्स ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज. तो अगर किसी के पास दिमागी किसी तरह की स्किल्स और नॉलेज है तो उसको ब्राह्मण की पदवी दी जाती थी, उनको ब्राह्मण माना जाता था. उनका काम होता है कि दूसरे लोगों को सिखाना, दूसरे लोगों को शिक्षा देनी, क्योंकि वो विद्वान होते हैं, वो बुद्धिजीवी होते हैं, वो उनके पास दिमाग होता है. तो वो स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, वो बच्चों को या बड़ों को, वो लोगों को शिक्षा देते हैं. जो क्षत्रिय होते हैं वो फिज़िकल उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जैसे कि ब्राह्मणों की मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी, इसलिए वो लोगों को मेंटली सर्व करते थे. वो अपने ज्ञान को लोगों के लिए, हित के लिए यूज़ करते थे.
ये भी एक तरीके की सर्विस हो गई। तो वो एज अ ब्राह्मण पूजे जाते थे। ब्राह्मण इसलिए पूजा जाता था क्योंकि वो मेंटली, वो ज्ञान की बातें करता है, उनके पास मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। उसी तरीके से जो क्षत्रिय होते थे वो फिजिकल स्ट्रेंथ में ज़्यादा होते थे, इसलिए वो लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, अपने लोगों को, अपने आसपास के, अपनी सोसाइटी के लोगों को। इसलिए उन्हें एक रिस्पेक्टफुल वे में देखा जाता था। इसलिए उन्हें समझा जाता था कि ये वॉरियर हैं, ये हमारे सेवियर हैं, अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो ये युद्ध में जाएंगे क्योंकि ये फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रेंथ है इनमें और ये फिज़िकली हमें ज़्यादा सर्व कर सकते हैं। तो वो एक कैटेगरी में बांटे हुए थे, जो वैश्य थे, जिनके पास धन की ज़्यादा समझ थी, जिनके पास समझ थी कि हम कि सोसाइटी को फाइनेंशियली कैसे एक अच्छे लेवल पे लेके आया जा सकता है, कैसे फाइनेंशियल वाले काम किए जा सकते हैं जिनसे पैसे का लेन देन या पैसे का जो सर्कल है वो चलता रहे वो, और कैसे हम एज अ बिजनेसमैन कैसे सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। और जो शूद्र होते हैं, शूद्र इज़ बेसिकली समवन हु डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल। It's not the caste, it's the state of mind or state of the, it's a capability, it's a physical और mental capability। अगर आपके पास, इवन अगर आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए हो, बट अगर आप कुछ नहीं सीखते हो, अगर आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को शार्प नहीं करते हो और आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, उतनी स्किल्स नहीं है सर्व करने के लिए, तो आप भी एक शूद्र कैटेगरी में आएंगे। इट डजेंट मैटर कि आप किस फैमिली में पैदा हुए हैं। तो शूद्र इज समवन हु डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल, हु डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। तो वो क्या करते थे, वो जो बाकी लोग हैं उनको सर्व करते थे कि हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमें खाने के लिए या हमें सर्वाइवल में हेल्प करो। तो ये सब लोगों की काम की अलग अलग कैटेगरी थी, ना कि कास्ट बाय, दे आर नॉट डिफाइंड, दे आर नॉट डिवाइडेड बाय देयर बर्थ, बट विद इन टाइम चीज़ें बदलती गई, चीज़ें टाइम के साथ जैसे भी बदलती जाती हैं, कोई ना कोई, भले वो कितनी सुंदर चीज़ भी हो, वक्त के साथ कभी कभी वो अपना रूप बदल देती है और वो कुरूप हो जाती है। इसी तरीके से इसमें भी कुछ प्लस पॉइंट थे और टाइम के साथ कुछ माइनस पॉइंट ऐड हो गए। आज के टाइम पे अगर कोई इंसान ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है और भले वो कितना भी मूढ़ बुद्धि हो, मूर्ख हो, कितना भी बेवकूफ़ इंसान हो, बट अगर वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है तो उसको ब्राह्मण की ही पदवी दी जाएगी। अगर कोई इंसान शूद्र फैमिली में पैदा हुआ है जिनके पास कोई स्किल्स नहीं थी, बट बाद में वो पर्सन अपने आप को मेंटली एंड फिज़िकली ग्रो करता है और वो चीज़ें सीखता है, स्किल सीखता है, नॉलेज गेन करता है, तो उसको पहले के टाइम पे ब्राह्मण की पदवी दी जा सकती थी आराम से, क्योंकि उसने अपने आप को उस काबिल बनाया। बट आज के टाइम पे अगर वो इंसान शूद्र फैमिली से है, भले वो कितनी भी स्किल सीख ले, भले वो कितना भी वो अपने आप को अपग्रेड कर ले, लोग उसको एज अ शूद्र ही ट्रीट करते हैं। एंड दैट्स द रॉन्ग पार्ट एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग टू डू विद एनी ह्यूमन बीइंग, कि उसको किसी तरह की कैटेगरी में फिक्स कर देना। तो हाँ, तो ये चीज़ जब मैंने जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी में जब मैंने खुद को ये चीज़ रिफ़्लेक्ट करके देखी कि ये कितनी सही है और कितनी सच है, तो मेरे को क्लैरिटी मिली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहाँ से ये क्लैरिटी आपको बुक से मिल सकती है या लॉजिकली सोचने से मिल सकती है। अगर आप थोड़े से भी लॉजिकल थिंकिंग रखने वाले पर्सन हो, तो आप आराम से ये चीज़ देख सकते हो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो ये मैंने चीज़ रियलाइज़ की, तो मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया। तो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल लोग समझते हैं कि जो भी वो सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम कहाँ से आया है। तो वो दूसरों के थोपे हुए बिलीव्स या थोपे हुए थॉट्स अपने ऊपर नहीं चूज़ करते हैं या अपने ऊपर नहीं लेते हैं, अपने जीवन में नहीं अप्लाई करते हैं या अपने जीवन के ऊपर नहीं हावी होने देते हैं। वो सिलेक्टिव थॉट्स को ही चूज़ करते हैं जो कि उनको सही लगते हैं। तो समाज में जो किसी तरीके के रॉन्ग कॉन्सेप्ट फैले हुए हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते उन चीज़ों को। एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ दैट पैराग्राफ। थोड़ा लंबा एक्सप्लेन कर दिया बट ठीक है। स्टार्टिंग माई थॉट्स आर गेटिंग हर्ट, और बट पॉइंट अभी कितने 6 हुए हैं। हाँ, थोड़े से रह गए हैं। 7, अच्छा 7, 8 छोटा है, 9th भी ठीक है, ठीक है। 7th, they recognize that in INFALLIBL
infallible. They recognize that infallible compo- compsure, com, COMPOSURE, sure, composure is not emotional intelligence. They recognize that infallible composure. Okay, let me read the explanation. They don't withhold their feelings or try to temper them so much as render them almost gone. They do, however, they have the capacity to withhold their emotions response until they are in the environment wherein it would be appropriate to express how they are feeling. They don't suppress it, they manage it effectively. Effectively, effectively. They don't withhold their feelings or try to temper them so much or render them almost gone. They do, however, they have the capacity to withhold their emotional response until they are in the environment whether it would be appropriate to express however they feeling. They don't suppress it, they manage it effectively. They don't withhold their feelings or try to temper them as much as to render them almost gone. They do, however, they have the capacity to withhold their emotional response until they are in the environment whether it would be appropriate to express how they are feeling. They don't suppress it, they they manage it effectively. Now, 1 second, now 1 second. Oh, back pain. तो इस पैराग्राफ में राइटर कहना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या राइटर कहना चाहते हैं। मैंने 3-4 बार पढ़ लिया, मेरे को लास्ट वाली लाइन समझ में आ रही है बट फर्स्ट वाली, फ्रंट वाली, ऊपर वाली लाइनें नहीं समझ में आ रही हैं। सो मैंने इतना ज़्यादा ज़ोर भी दिया, मैंने उसको 3-4 बार पढ़ा भी बट नहीं समझ में आया। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। They know the feeling will not kill them. They know that feeling will not kill them. They are developed enough stamina and awareness to know that all the things, even the worst, are transitory. मतलब कि उनको पता है कि अगर वो कोई फीलिंग फील कर रहे हैं, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो कुछ नेगेटिव फील कर रहे हैं तो वो चीज़ उनकी जान नहीं ले लेगी। अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम में उनको कितना भी स्ट्रेस हो रहा है तो वो इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि मर ही जाएंगे। कोई भी फीलिंग है वो चेंज हो सकती है, कोई भी सिचुएशन है वो इतना टाइम के साथ स्टेमिना डेवलप कर लेते हैं या पेशेंस डेवलप कर लेते हैं कि उनको समझ में आता है कि चीज़ भी चली जाएगी, ये फीलिंग भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि मेरे साथ है, अगर मैं कुछ ऐसा मेरे साथ होती रहती हैं, कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती हैं या कुछ मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ जो मेरे को वियर्ड लगता है उस टाइम के लिए, या जब मेरे को अगर कोई कुछ बोल देता है तो उस टाइम मेरे को बुरा लग रहा होता है बट आई एम स्टिल सो मच सेल्फ अवेयर कि मुझे पता है कि विद इन टाइम वो चीज़ धुंधली हो जाएगी। मेरी लाइफ में कितने ही ऑकवर्ड मोमेंट रहे हैं या कितने ही ऐसे मोमेंट रहे हैं जो मुझे लगता था कि यार कितना ख़राब हो गया मेरी लाइफ तो कितनी ख़राब हो गई है, मेरी लाइफ तो कितनी ही ख़राब हो गई है। सॉरी यार, क्या हो रहा है।
कि जब मुझे ये लगा कि मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इवन स्टिल मैं 25 26 या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 26 27 डेज़ हो गए हैं जब मैं रूम में पड़ा हुआ हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जॉब ढूंढने की, जॉब मिलने की, बट मेरे को जॉब नहीं मिल, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिल रही है, मेरे को ढंग की जॉब नहीं मिल रही है। आई कांट वर्क इन ऑफिस। मुझे किसी ऑफिस में बैठ के मैं काम करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि आप सुबह से लेके शाम तक, मतलब वो 12 घंटे की ड्यूटी तो हर काम में है ही है। 12,000 के लिए, 10 या 12,000 के लिए आ, सुबह से लेके रात तक की ड्यूटी है ही है हर काम में। तो आप सुबह से लेके रात तक अगर किसी जगह पे ठहर रहे हो, काम कर रहे हो, और वो पूरी तरीके से बंद है, बंद जगहों में तो मुझे घुटन होने लगती है, सांस नहीं है मेरे को, तो ऐसा होना। आसमान तो मेरे को इतना प्यारा है ना कि मैं आसमान के बिना नहीं रह सकता, मेरे को खुला आसमान चाहिए ही चाहिए। अ, दिन में 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी मिल सके तो बेस्ट है, जितना ज़्यादा मिल सके उतना बेस्ट है। बट मुझे खुला आसमान बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा सांस आती है खुली हवा में। तो अगर बंद जगह पे काम करना, सुबह से लेकर रात तक वहीं पे रहना, फिर रात को वापस आना और अपना खाना बनाना, और खाना खाते ही इतना थके होना कि चुपचाप सो जाना, और फिर नेक्स्ट डे जब आप उठते हो तो सेम चीज़ आपको रिपीट करनी पड़ती है। एंड आई हेट दैट, and I genuinely hate that. If I can't like my work, if I can't like my process, I will not do that. It doesn't matter कि क्या है, मैं कोशिश करूँगा, अगर बुरी से बुरी ज़्यादा सिचुएशन आ रही है तो मैं कोशिश करूँगा कोई ऐसा काम ढूंढने की जो मेरी पर्सनैलिटी, जो मेरी उसके साथ मैच कर सके, मेरे थॉट प्रोसेस के साथ। तो मैंने जो समझा है कि वो अगर जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम तक योगा स्कूल में काम किया, बहुत अच्छे से रहे मेरे 3 महीने। तो अभी मेरे को जॉब नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी योगा स्कूल या किसी आश्रम या किसी ऐसी जगह पे काम कर सकूँ जहाँ पे मेरे को वैसा वाला इन्वायरमेंट मिले, खुला आसमान और अ, खुले तरीके से काम करना। मैं तो लाइक, हाँ, इट्स सो मच लाइक वियर्ड। तो मैं अभी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को ढंग का काम नहीं मिल रहा, मतलब काम मिला था, एक काम मिला था, और मैं गया था वहाँ पे, एक रेस्टोरेंट में काम था, मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे लगा कि बिलिंग की जॉब है, मैंने बिलिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, और उन्होंने बोला भी था कि बिलिंग का काम है, और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, सर्विस। आपको सर्विस में भी काम करना, आपको सर्विस में काम करना, बेसिकली आपकी जॉब सर्विस की है। तो मुझे लगा बिलिंग भी तो एक सर्विस है, तो शायद बिलिंग वाली जॉब होगी। बट जब मैं फर्स्ट डे गया तो उन्होंने मेरे को एज वेटरेस ट्रीट करना शुरू किया, उन्होंने मेरे को बताया कि ये काम है। बट फर्स्ट टाइम मेरे को थोड़ा सा, फर्स्ट ही डे था तो लाइक थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई, बट मैंने क्लियर नहीं की। मैं लाइक जाते ही मैं फ़र्स्ट टाइम, मतलब ऐसे मैं जेब में हाथ डाल के वहाँ पे खड़ा था, एक गंजा सा टकला सा मुच्छड़ आया, मतलब उसने मूछें रखी हुई थी और वो गंजा था, और लाइक मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता किसी की बेअदबी करना, किसी के ऐसा बॉडी शेम करना, बट वो बहुत बेकार इंसान था यार। मतलब बेकार इंसान ऐसे था कि मैंने मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस वहाँ पे खड़ा था जेब में हाथ डाल के, मतलब मैं जेब में हाथ डाल के, मेरे को बोलता है कि मैंने तुम्हें 2 3 बार नोटिस कर लिया, तुम जेब में हाथ डाल के क्यों खड़े होते हो? तेरा बिल आ रहा है, तेरे बाप का पैसा, मतलब तेरे बाप की जेब है क्या, मतलब तेरे क्या प्रॉब्लम है तेरे को, तेरा। ये वीडियो अगर उसने देख ली तो, वो तो मेरे को जानता भी नहीं है, वो कैसे ये वीडियो देखेगा? अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो नहीं होगी शायद, चल। और वो, उसके पास मेरा नंबर नहीं है यार, वो नहीं जानता मेरे को, कैसे ढूंढेगा? चल तू बोल ले, तू बोल ले, तू अपने दिल की बात बोल। ठीक है, तो हाँ, तो वो, उसको क्या प्रॉब्लम है उसको? मैं जेब में, मैंने कुछ किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं सिर्फ जेब में हाथ डाल के बैठा हूँ, बैठा भी नहीं, मैं जेब में हाथ डाल के खड़ा था, और ही वाज लाइक कि जेब से हाथ निकालो, तुम, मैंने तुम्हें 2 3 बार नोटिस कर लिया, तुम जेब में हाथ डाल के खड़े रहो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि फर्स्ट डे था मेरा जॉब का। मैंने बस उसको स्माइल पास किया और जेब में से हाथ निकाल लिया। तो फिर उसने मेरे को बोला कि ये प्लेट्स साफ़ कर दो। क्या? ये प्लेट्स साफ़ कर दो। मेरे को तो समझ में नहीं आया कि ये क्यों, बट फिर मैंने कर दी मैं। और वो प्लेट साफ़ कर दो, मतलब
क्योंकि होटल लाइन सर्विस वाली लाइन है, तो वो आपको एकदम ही परफेक्ट, उनको परफेक्ट सर्विस चाहिए होती है कि कांच का गिलास है तो उसमें से पानी का निशान तक नहीं दिखना चाहिए। 4 घंटे, 4 से 5 घंटे मैंने खड़े होके सिर्फ प्लेट्स और गिलास ही साफ़ किए, कपड़े से प्लेट्स और गिलास। मेरे दिमाग की जो सनकी है ना, एक तो वो पूरा कमरा बंद, बाहर आप जा नहीं सकते। उन्होंने कोई स्टूल तक नहीं वहाँ पे लगा के रखा है कि बैठ के कोई इंसान काम कर ले, बोले खड़े खड़े काम करना है, और 12 घंटे की ड्यूटी, बताओ। फिर मैंने जब वो सारा काम हुआ तो मैं वापस गया, मैंने बोला कि सर आपने कल इंटरव्यू लिया था कि बिलिंग की जॉब के लिए, क्योंकि लास्ट में जैसे प्लेट साफ़ हुई उसने बोला कि ये सारे टेबल सेट कर दो, और मतलब लाइक लोग आएंगे लंच करने के लिए या वगैरह वगैरह, तो टेबल सब साफ़ कर दो। एक बिच, मैं टेबल साफ़ करूँगा? मतलब मैं कर सकता हूँ एज अ किसी कोई सेवा के लिए, किसी को मतलब कोई गेस्ट हो, कोई वो हो, कुछ वो करना हो, कर सकता हूँ। लोग आएंगे, लोग होटलों में हम्बल नेचर वाले लोग बहुत, लाइक ऐसा नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा हम्बल होने के लिए आते हैं, वो पे कर रहे हैं, उनको बेस्ट सर्विस चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो वो आपके ऊपर चिल्ला भी सकते हैं। तो मैं क्यों किसी की सुनूं? मैं लाइक मतलब मेरे को तो ये तो बहुत वाहियात चीज़ लगती है कि सिर्फ अगर वो 12,000 भी दे रहे हैं तो एक दिन का 400 रुपया दे रहे हैं, और एक दिन के 400 रुपये के लिए वो आपसे 12 घंटे तक लगातार, मतलब आपको जानवरों की तरह आपसे काम ले रहे हैं। मतलब आप में से जितना काम वो निकाल सकते हैं आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो लाइक तो सारा दिन भागा दौड़ी, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, और फिर उसके बाद एकदम मैं थक गया था। मेरे को ऐसा काम पसंद ही नहीं है। मेरे को लगता है अगर आप थोड़ी सी भी कोई स्किल सीख के खुद के ऊपर काम कर सकते हो तो आप उससे बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। आपको क्यों किसी ऐसी सर्विस करने की ज़रूरत है? अगर आप ऐसी सर्विस कर भी रहे हो, मेक श्योर कि आपको अच्छी पेमेंट मिले। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है या आपका कोई दूसरा ड्रीम नहीं है जो भी करने वाला, तो मैं क्यों ऐसा कोई काम करूं जिसमें मेरे को लाइक एज अ ट्रीट किया जा रहा है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट की माँ बहनें की जा रही है, या सेल्फ़ रिस्पेक्ट की मतलब मैं खुद ही, मतलब लोग खुद ही कर लेते हैं, आई डोंट नो हाउ। बट हाँ बट बट हाँ, मेरे को बहुत बुरा फील हुआ, तो मैंने उनसे जाके बात की कि सर मेरी बिलिंग पे जॉब के लिए इंटरव्यू हुई थी, आप मेरे से कैसे कैसे काम करवा रहे हो, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको बोला तो था कि सर्विस में जॉब करोगे आप। तो मैंने बोला सर्विस में तो बिलिंग भी तो सर्विस है, तो मैंने बिलिंग के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया था, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मैं अभी जा रहा हूँ। तो फिर मैंने जिसने मेरे को रखवाया था मैंने उनसे बात की और सब क्लियर किया कि ऐसे ऐसे थी, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता था, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और ये बात मैंने उसको जेब में हाथ डाल के बोली, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कोई चीज़ होती है यार। मैंने मतलब कैसे कोई बोल सकता है मेरी जेब में हाथ? मेरे को भी चलो समझ में आता है कि अगर आप वेटर हो तो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज, एक वो होना चाहिए, पर वो कस्टमर के सामने, अगर कोई कस्टमर है, मैं आराम से बैठा हूँ, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं क्या अपनी ज़िंदगी के जो कुछ फ्री वाले मोमेंट थे उनको इंजॉय नहीं कर सकता, उनके मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता? लोग समझते हैं कि अगर आप गरीब हो तो आपको लाइक खरीद ही लिया हमने। अगर आप कोई इस दैट्स वाई आई हेट जॉब। जॉब कल्चर में ऐसा ही होता है मोस्टली, अगर कोई आपको पे कर रहा है थोड़ा सा भी तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उसने आपको ख़रीद ही लिया, जैसे आप अब आपकी कोई सेल्फ आइडेंटिटी ही नहीं है। एंड आई हेट दैट थिंग, दैट्स वाई आई वर्क वेरी हार्ड टू क्रिएट माई ओन आइडेंटिटी, कि मुझे सिर्फ 10, 12, 15 हज़ार के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना पड़ेगा, कि किसी के अंडर काम ना करना पड़े। मेरी लाइफ का सारा पॉइंट यही है, ये वीडियो क्रिएट करने का या कोई भी नई चीज़ क्रिएट करने का, या मैं नई नई स्किल्स सीखता रहता हूँ। इन दिनों मैं मेहंदी लगाना सीख रहा हूँ कि कैसे मैं खुद ही का काम शुरू कर सकता हूँ। इवन मेरे को एज अ फ्रीलांसर छोटा मोटा काम भी मिलेगा तो मैं वो भी करके खुश हूँ। बट मेरे को किसी के अंडर काम करना, किसी की गुलामी करना 10, 15 हज़ार के लिए बिल्कुल भी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके लिए मुझे कितना भी काम करना पड़े, मैं दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ, बट खुद के चीज़ के ऊपर। अगर कोई भी मेरा खुद का लाइक मेरा अगर सेल्फ ब्रांड भी है, अगर मैं सेल्फ ब्रांड क्रिएट कर रहा हूँ कि खुद की मेरी फेस वैल्यू हो, मेरी आइडेंटिटी हो, और कुछ भी हो, मेरा कोई भी काम हो,
इवन एज एन म्यूरल आर्टिस्ट या एज एन रैपर या एज अ रैपर या एज अ राइटर या एज अ पोइट या एज अ यूट्यूबर, किसी भी तरीके से मेरी आइडेंटिटी हो, तो मुझे किसी और के लिए काम ना करना पड़े। अगर मैं किसी और के लिए भी काम कर रहा हूँ तो उस काम में इज्जत हो, अच्छा पैसा हो। जस्ट बिकॉज मैं एक गरीब घर से आता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि क्या मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता। मेरी ग्रो करने की इच्छा है, मेरी काम करने की इच्छा है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो कहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है। तो दैट्स वाई मैं 8 पॉइंट पे था। दे नो द फीलिंग विल नॉट। हाँ, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो हाँ, बस इसी के लिए कि एक दिन खुद के जो भी काम करेंगे उसका इतना बड़ा वो क्रिएट कर देंगे कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। और जब तक नहीं होता तब तक तो कर ही रहे हैं, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन। हाँ, तो 9th पॉइंट, they don't just become close friends with they don't just become close friend with anyone. They recognize true trust and intimacy as something you build and something you want to be discerning with form you share, but you are not guarded or closed are as they are simply mindful and aware of who they are allow into their lives and hearts. They are kind to you all but truly open to few. कि जो भी इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इतनी जल्दी या इतनी आसानी से सबको, वो बहुत रेयर लोगों को अपना क्लोज़ फ्रेंड बनाते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई क्लोज़ फ्रेंड है तो वो मायने रखता है कि वो क्लोज़ फ्रेंड है। वो सबको ही अपनी लाइफ के बारे में अंदर एंट्री नहीं देते हैं। वो देखते हैं कि क्या ये इंसान वर्थ इट भी है मेरी टाइम के लिए, मेरी एनर्जी के लिए। और वो दे कैन बी काइंड टू ऑल ऑफ़ यू, they can be kind to all of you but they are not see you as a close friend, and that's a totally fine thing कि आप सबको आप सबसे दया से, प्यार से, अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, वो अच्छी बात है। बट ऑब्वियसली यू कांट मेक ऑल ऑफ देम योर क्लोज फ्रेंड। तो अगर कोई क्लोज फ्रेंड बनाना भी होता है या वो वर्थ इट करता है आपकी लाइफ में। जैसे कि मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे अच्छे, मैं सबसे अच्छे से ट्रीट करता हूँ, सबको अपना दोस्त समझता हूँ। लाइक नॉट दोस्त एज अ दोस्त, बट लाइक आप सबको अच्छे से व्यवहार रखता हूँ, सबसे प्यार से बात करना, उनकी हेल्प कर देना, अगर उनको मेरी ज़रूरत है तो उनके लिए अवेलेबल हो जाना, कोशिश करना कि जितना मैं किसी का भला कर सकता हूँ तो करूँ, किसी को प्यार दे सकता हूँ तो दूँ। प्यार इन द सेंस कि काइंड वर्ड, अच्छे शब्द, अगर उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, उनको कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे सकता हूँ, इवन इफ़ दे आर नाउन और अननाउन, और अगर वो थोड़े से भी जान पहचान वाले हैं कि उनको खुश कर सकता हूँ। Not to please them but try to make them happy, try to make them feel special, that's all. But कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, जो कि मेरी एक फ्रेंड है वर्षा करके उसका नाम है। शी इज़ वेरी स्पेशल इन माई लाइफ। हम 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं एंड शी रियली मेंट फॉर मी। आई कैन से दैट शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई क्लोज फ्रेंड। एंड हाँ, क्योंकि वो दोस्ती बिल्ड करने में टाइम लगा, 3 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो उसमें वो मैंने देखा है, वो केयर करती है, वो सच में केयर करती है। एंड आई ऑल्सो डू केयर ऑफ माई पीपल, कि जो मेरे लोग हैं मैं उनकी केयर करता हूँ सच में, उनको कोशिश करता हूँ कि उनको खुश रख सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ। और वो भी इसी तरीके से लाइक जब दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो सोचते हैं कि कैसे मैं किसी से कुछ ले सकता हूँ, कैसे मैं किसी से कुछ मांग सकता हूँ, कैसे मैं किसी से कुछ छीन सकता हूँ, जो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मुझे किसी से क्या मिलेगा। आई शुड नॉट लेबल दैम एज अ गुड और बैड। वो खुद देखें, लोग देखें कि वो किस तरीके के लोग हैं। बट वो लोग ऐसे होते हैं, वो हमेशा ही ये सोचते रहते हैं कि उनको कहाँ से क्या मिल सकता है,
और दूसरे वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार मैं, अगर मेरी लाइफ में कोई आया तो मैं उसको क्या दे सकता हूँ, उसको क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ उसकी लाइफ में, या उसको कैसे उसको स्पेशल फील करा सकता हूँ। अगर वो मेरा दोस्त है, अगर उसने मेरे लिए एक चीज़ की है, तो कैसे मैं उसके लिए 10 चीज़ें कर सकता हूँ। सो आई एम अ सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन। तो मेरे साथ बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मेरे को दूसरी तरह के लोग मिले, मेरे को मेरे जैसे लोग मिले जो कि सच में किसी को कुछ बांटना चाहते हैं, सब सच में किसी को कुछ देना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं जो कि इसी उम्मीद में इसी मतलब ताक झांक में होते हैं कि मेरे को इससे क्या मिल सकता है, मेरे को कितना मैं इससे कंज्यूम कर सकता हूँ। बट वर्षा इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो सोचती है कि मैं कैसे मैं इसको कुछ दे सकती हूँ, कैसे मैं इसको खुश कर सकती हूँ, कैसे मैं इसकी केयर कर सकती हूँ। तो वो केयर दिखती है, दैट्स वाई शी इज़ वेरी स्पेशल टू मी। एंड very few people are special in my life, and she's one of them. And इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, मैं मतलब किसी को दोस्त कह सकूँ ऐसा मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैं ज़्यादा लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करता हूँ। कॉल पे मेरी रेयरली किसी से बात होती है। तो बट मैं अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं अवेलेबल हूँ उनके लिए। बट दे आर नॉट माई क्लोज फ्रेंड्स, और दे आर नॉट समथिंग लाइक स्पेशल पर्सन ऑफ माई लाइफ। बट या आई एम देयर फॉर देम। या आई फील, बट जो कि स्पेशल लोग हैं वो बहुत कम है मेरी लाइफ में। और हाँ, दैट्स द पॉइंट। एंड द 10th पॉइंट, they don't confuse bad feelings for bad life. They are aware of and avoid extrapolation, which is essentially essentially projecting the present moment into the foreseeable future, believing that the moment and hand hand your life entire, rather than just being another passing emotionally in. Emotional intelligent people allow themselves their bad days. Emotionally intelligent people allow themselves their bad days at themselves be fully human. It's the non-resistance that they find the most peace of all. पूरा तो मुझे समझ में नहीं आया है कि क्या लिखा है, बट जितना मेरे को समझ में आया है, दे डोंट कन्फ्यूज़ बैड फीलिंग्स फॉर द बैड लाइफ। जस्ट लाइक मैंने पहले ही ये थोड़ा कुछ पॉइंट पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि कभी आप अच्छा फील करते हो, कभी आप बुरा भी फील करते हो। बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि आप अननेसेसरी टायर्ड फील करते हो, मतलब बेवजह आपको समझ में नहीं आता। शायद वो आपके स्लीप शेड्यूल की वजह से हो सकता है, या खाने पीने की आदतों की वजह से हो सकता है, या हो सकता है कि आपने बहुत दिन से वर्कआउट नहीं किया, या कुछ भी हो सकता है। रीज़न कुड बी एनीथिंग, but they understand that even if they are feeling bad, even if they are feeling worst, और कुछ बुरी फीलिंग महसूस हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पूरी की पूरी लाइफ ही ख़राब है। अगर आपका एक दिन ख़राब गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरी लाइफ ख़राब है। आपके अच्छे दिन भी आएंगे, आपके बुरे दिन भी चलते रहेंगे। दे फाइंड स्टेबिलिटी विद दैट, दे आर ओके विद दैट कि ठीक है, आज बुरा दिन है, कोई बात नहीं, लाइफ ख़राब नहीं है, हम इसको ठीक कर सकते हैं। विद दैट सेम, मतलब जो मैंने पहले बताया, सेम चीज़ बताई हुई है, और यही है। और यही था 10th पॉइंट। मतलब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ क्या, थोड़ा सा कर देता हूँ कि आपका मूड कैसे, मतलब आपका कई बार हमारा मूड ख़राब होता है। कहते हैं ना कि आज मूड नहीं यार, मन नहीं कर रहा, मूड ख़राब है। तो कई बार हमारा मूड ख़राब होता है, कई बार हमारे साथ कुछ दिन ख़राब चला जाता है, कोई एक ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार आज का दिन ख़राब गया। बट आज का दिन ख़राब होने की वजह से पूरी की पूरी आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। आपकी ज़िंदगी अच्छी है, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है अगर आप उस पर काम कर रहे हो।
तो वो काम करते रहने से खूबसूरत हो जाती है, सुंदर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। बट हो सकता है कि आज का आपका एक दिन ख़राब क्या हो, आपका एक दिन ख़राब होने की वजह से, वही मैं सेम चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे कि आपका एक दिन ख़राब हो सकता है, आपका एक वीक ख़राब हो सकता है। बट एक वीक ख़राब होने की वजह से पूरा मंथ ख़राब नहीं होता, जैसे एक महीना ख़राब होने की वजह से पूरा साल ख़राब नहीं होता। वैसे ही कुछ दिन ख़राब होने की वजह से या कुछ टाइम पीरियड ख़राब चलने की वजह से ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़राब है। आप खुद पे काम करते रहिए, खुद की स्किल्स पे काम करते रहिए, खुद को अपग्रेड करते रहिए, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, आप कहीं ना कहीं लाइफ में पहुंच ही जाएंगे, आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो डोंट, सो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल डोंट कंफ्यूज द बैड डेज विद बैड लाइफ्स। अच्छी बात मेरे को ये लगी कि 10 में से 8 पॉइंट से तो मैं रिलेट कर गया यार, मतलब आई एम रियली इमोशनली इंटेलिजेंट, वाओ। थम्स अप फॉर माई सेल्फ। 2 पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आए, मतलब मेरे को अच्छा ये भी नहीं पता कि वो क्या लिखा था उनमें, तो मैं नहीं बता सकता कि मैं उनसे रिलेट कर पाया या नहीं कर पाया। बट हाँ, 8 में से तो मैंने बहुत रिलेट किया, और मैंने अपनी लाइफ के साथ अटैच करके आपको समझाया भी कि उसका मीनिंग क्या है, कि वो क्या मतलब बनता है उस बात का। हाँ, तो यही थे 10th पॉइंट, दैट इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट डू। 10 things that 10 things emotionally intelligent people do not do. I hope so you like the concept. I hope so you like the like my reading, the way I read or the way I explain. Um, and if you like my video, please like, share and subscribe ज़रूर करना, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके का मैं कंटेंट बना रहा हूँ और जिस तरीके के कंटेंट आगे भी आएंगे, या जिस तरीके का कॉन्सेप्ट मैं लेके आ रहा हूँ वीडियोस में, हो सकता है कि मेरा टाइम पीरियड तो मतलब वो 4000 टाइम पीरियड तो पूरे हो जाएं, बट आई एम नॉट दैट मच श्योर अबाउट द 1000 सब्सक्राइबर. So please, if you can help me with gaining subscriber, I would be very thankful to you, and I would be very grateful towards you. And please, and right now मैं कुछ जैसे कि हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ कॉन्सेप्ट। हाँ, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, लाइक मैं इंग्लिश में रीड करता हूँ और हिंदी में। मैं कभी कभी सोच रहा था कि पूरी ही वीडियो इंग्लिश में बनाऊँ, बट फिर कॉन्सेप्ट क्या रह जाएगा, इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हिंदी में एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ कि जिन लोगों को इतनी अच्छी हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, या बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है, वो भी इस वीडियो को देख के समझ पाएँ या सीख पाएँ। And I'm just trying to read whatever I can. Even I'm not that much fluent in English, I'm not that much expert in English, but still I can speak basic level of English, and I can read and I can explain whatever I understand. But yeah, still I choose to explain that thing in Hindi because I want you to understand. I also want you to understand कि आपको भी समझ में आए जो मैंने पढ़ा है। और इसके अलावा मैं उसको रियल लाइफ से या बेसिक जो अपने आसपास की इंसिडेंट होते हैं उनसे रिलेट करके आपको समझा सकूं कि इसका क्या मतलब है, इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली सिर्फ रीड करना ही हमारा, सिर्फ उसको रट मतलब पढ़ते जाना ही मतलब ये मिशन नहीं है, या एक तरीके का वो नहीं है। हमें उसको समझना भी है, हमें उसको अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में। और हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, वो जब भी आएगी, अरे ये तो 1 सेकेंड। तो नेक्स्ट वीडियो, हाउ द पीपल वी वंस लव्ड बिकम स्ट्रेंजर अगेन, हाउ द पीपल वी लव वंस बिकम द स्ट्रेंजर्स अगेन। ये वीडियो होगी, नेक्स्ट चैप्टर इस बारे में है। ये तो मेरी लाइफ का लाइक एक तरीके का बहुत बड़ा पार्ट है, कि जिन लोगों को कभी प्यार करो तो एक टाइम के बाद वो स्ट्रेंजर्स बन जाते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे जानते ही नहीं हैं। बट दे वर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ। शायद आज के टाइम पे वो मेरा नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे वो लोग, जो एक टाइम पे बोलते थे कि यू आर द बेस्ट पर्सन ऑफ माई लाइफ। ठीक है, उसमें अभी इतना नहीं घुसते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।
क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 1 आवर और 34 मिनट्स की हो गई है, 35 मिनट्स, और मैं पिछले 1 घंटे से बोले जा रहा हूँ एंड मेरा गला बहुत पेन कर रहा है। बट अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई होप सो यू लाइक द कॉन्सेप्ट, एंड आई होप सो I just hope so you like the concept, and thank you so much for your valuable time. Please like, share and subscribe, and आगे और भी वीडियोस आएंगे। थैंक यू सो मच।